A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. अभी तक हम लोग फ्रॉम लास्ट 3 वीडियोस हम बात कर रहे हैं अपनी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर कि क्या हमारी ये अवेयरनेस जो हमारी शक्ति है, इसके ऊपर काम करना इम्पॉर्टेंट है. इसके बारे में क्या मिथ्स हैं, क्या फियर्स हैं, और जब हम इस शक्ति के ऊपर अपनी काम करते हैं, अपना इनर वर्क इन ट्रू सेंस करते हैं, तो ये कैसे मैनिफेस्ट होती है हमारी लाइफ में. और अभी भी अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे, देन प्लीज़ डू सो, क्योंकि वो बहुत ही स्वीट, शॉर्ट एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है और आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे. कोई भी चीज़ जब आप सीरीज़ में करते हैं, then we feel more connection, we have more clarity. Okay, so today what I'm going to do is, now I have talked about in every chakra that this is the pathway of our kundalini energy to go from our Mooladhara, our basic chakra, to our higher consciousness, to our crown chakra. And for that, we have to work on our each and every chakra and our nadi tantra, especially our Ida, Pingala, and Sushumna. From now onwards, in each and every video, I'm going to talk about specifically one chakra. So let's start with Mooladhara today, the first chakra. मूलाधार जो है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में फर्स्ट चक्रा माना जाता है. ह्यूमन अवेयरनेस का फर्स्ट चक्रा है. हमारा एवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है. वेयर एज इन एनिमल किंगडम दिस चक्रा इज द हाइएस्ट चक्रा. ओके, एंड animal they do not have that kind of a awareness to work on themselves, to do the inner work. तो उनका एवोल्यूशन कैसे होता है? उनका एवोल्यूशन जो भी एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उस पे जैसे जैसे जो भी हो रहा है, ऑटोमेटिक मोड में अपने आप उनका एवोल्यूशन होता है. दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ लेवरेज विच वी हैव, दैट दे कैन वर्क एंड इवॉल्व मोर. तो इसलिए जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, we are very lucky, and especially when we are on this 3D um, uh, consciousness in Mother Earth. That is why we chose to come on this. This is our learning school where we can learn and ascend for higher consciousness, for higher planes, right? क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है उस उनमें जो है वो टाइम एंड स्पेस एंड डायमेंशंस की कॉन्शियसनेस होती है. वहाँ पर कोई भी लॉ ऑफ नेचर, जैसे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, दे मेट एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. Throughout the year they do not mate. Even if they live with each other, the female and the male, they live with each other, they do not mate. They mate when a particular season comes or a particular time comes, right? Whereas in human, they do not have that kind of awareness, or they do not have that kind of I would say the bondage. They can mate whenever they want to, right? But they have the consciousness of time and space. So हमारा जो मूलाधार चक्र है, before I start is about telling about its location, we have 3 granthis in our physical system, which is Brahma Granthi, Vishnu Granthi, and Rudra Granthi. जो हमारी ब्रह्म ग्रंथि है, that lives in our मूलाधार चक्र. Our Vishnu Granthi lives in our heart chakra, and our Rudra Granthi is in our third eye. So Granthi, what does it mean? The Brahma Granthi, it has the, it gives us the awareness of higher consciousness. That where do we stand? What is our consciousness? Because when our Mooladhar, what is Mooladhar? Mooladhar is मूल आधार, सबसे बेसिक चक्र. जब तक हम इस चक्र के ऊपर काम नहीं करते और ये ब्लॉक्ड स्टेज में रहता है, इट इज फुल ऑफ इग्नोरेंस, हाई लेवल ऑफ सेल्फिशनेस, all the fears, angers, insecurities, a feeling of I do not belong here, it's not enough for me, the fear of survival. So all these things, from where it comes? It's not necessarily from this lifetime, because our soul has many lives lived before.
और उसके पास वो सारी जो कॉन्शियसनेस है, जो भी अच्छा बुरा वॉट एवर जो मेमोरीज है, दे हैव all the memories from all the lifetime and which is stored in our energy system. So this is the only thing we carry forward from one generation, one lifetime to another lifetime. Whereas whatever we earn with our ignorance, with our selfishness, with our low, emotions, with our fears, with our pains, whatever we earn, we just leave here when we leave our body, our physical body. Whatever we earn in the physical reality, in materialistic way, that just stay here. The only thing we carry is our learning, our consciousness. तो जब तक हम अपने इन चक्रास के ऊपर काम नहीं करेंगे और ये ओपन नहीं होंगे, दे क्रिएट लाइक अ बैरियर, और जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी मूलाधार चक्र में रहती है सुषुप्त अवस्था में, दैट वोंट गेट द पैसेज टू गो अपवर्ड. अब मूलाधार चक्र की लोकेशन कहाँ पर है? जहाँ हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है, हमारा जो टेल बोन है जहाँ पर वो ख़त्म होती है, वहाँ पर इफ़ यू प्रेस लिटिल लॉन्गर, लाइक a couple of seconds or a minute, and you remove your finger, you can feel the palpitation, and that is the area of our Mooladhara chakra, right? And in this chakra, we have our this vital force energy in Sushupta अवस्था, जो मतलब बिल्कुल साइलेंट मोड में होती है. इस चक्रा का कलर रेड है, जो हम सबको मालूम है. इसका जो 4 पेटल्स होते हैं, and each and every petal has significant role and significant existence. It's not just कि लोटस है और उसके 4 फ्लावर्स हैं, पेटल्स हैं, सॉरी. इनकी हर पेटल की एक जो है वो सिग्निफिकेंस होती है, and that's what we teach when we teach in the क्रिया कुंडलिनी क्लास, that each and every जो हमारी पेटल है वो क्या डिनोट करती है, और जब वो बंद होते हैं तो क्या होता है, और जब हम उसको हम अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है. इसका जो हमारा बीज मंत्र है वो है लम. अब बात ये आती है कि इस चक्र के ऊपर कैसे काम किया जाए, राइट? तो अब कई लोग देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा चैंट करते हैं, लम का उच्चारण करते हैं या थोड़ी देर वहाँ पर ध्यान लगाते हैं, देन इट स्टार्ट्स ओपनिंग. इट ऑल डिपेंड्स कि हमने अपने प्रीवियस लाइफ टाइम में या इस लाइफ टाइम में कितना काम किया है अपने ऊपर. ओके, अगर हमने पहले काम किया हुआ है तो हो सकता है कि within few days, within few weeks, within few months, even if you just chant the mantra, it opens, right? But अगर हमारा कार्मिक बैगेज है काफ़ी, अगर हमारा जो है हमने पहले अपनी साधना नहीं की, तो इट विल टेक रियल लिटिल टाइम. और जैसे कि हमारे जो चक्रास होते हैं वो हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से कनेक्टेड होते हैं. तो हमारा जो मूलाधार चक्र है वो कनेक्टेड है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से. हमारे ब्रेन में जो एक पार्ट है अनकॉन्शियस माइंड, दैट इज कनेक्टेड विद अनकॉन्शियस माइंड. अब अनकॉन्शियस माइंड क्या है? अनकॉन्शियस माइंड के पास सारी हमारी पास्ट की मेमोरीज होती है. सो मेमोरीज ऑफ हमारा किसका डीएनए है हमारे अंदर, हमारे फादर के साइड के जितने भी एंसेस्टर्स हैं, हमारे फादर जिनका डीएनए कैरी करते हैं, लाइक मेरे फादर किसका करेंगे? अपने फादर और अपनी मदर का. मेरी मदर किसका करेंगी? अपने फादर और अपनी मदर का. और इस तरह से दैट गोज ऑन. सो जो भी वो इंफॉर्मेशन है मेरे एंसेस्टर्स की, उनके बिलीफ सिस्टम्स जो हैं, उनके जो भी कार्मिक बैगेज है, उनका जो भी उन्होंने आज दिन तक झेला है, राइट, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंचती है और हमारे साथ कनेक्टेड होती है. हमारा जो 80% डीएनए है, दैट ऑल कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर फैमिली हिस्ट्री, ऑफ आवर एंसेस्टर्स. ओके, सो अगर हम में से कोई भी ये सोचता है कि लाइक माई लाइफ इज माई लाइफ एंड इफ आई एम हीलिंग दैट इज इनफ, नो, इट्स नॉट इनफ.
because until and unless we are not going to clear the pathway of our ancestors, whatever they have done, even we carry the curses, whatever they have done so far, and not only our ancestors, like anybody of like family tree, right? Like my father and his siblings and their children, and my mother and her siblings and their children. So anything they do or anything they whatever good and bad, that affects me. तो कई बार हम फैमिलीज में जैसे ये सोचते हैं कि भाई अरे वो दूर के रिश्तेदार हैं, हम तो उनसे बात नहीं करते, तो दे हैव नथिंग टू डू विद अस. नो, इफ एनीबडी इज पार्ट ऑफ माय डीएनए, दैट पर्सन हैज interference in my life. So it's very important to understand deeply when we are healing our root chakra what we are healing. आप देखें अपने अपने जो जनरेशन्स हैं, जो आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, उनकी क्या बिलीफ सिस्टम है. कई फैमिलीज होंगी जिसमें आप देखेंगे कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो मनी इश्यूज हैं. जनरेशन टू जनरेशन किसी के यहाँ शादी नहीं होती, किसी के यहाँ डिसहार्मनी होती है रिलेशनशिप में, किसी के यहाँ अर्ली डेथ्स होती हैं, कुछ भी जो भी है. सो वी आर पार्ट ऑफ इट until and unless we won't heal it. And as I said कि अगर हम खाली एक कोई गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं या अपने चक्रास के ऊपर सिर्फ ध्यान लगा रहे हैं, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपकी हीलिंग हो. लेकिन इन दैट केस आप अगर ज़्यादा कार्मिक पैकेज कैरी नहीं कर रहे, और अगर आपने पहले जो अपने लाइफ टाइम है या इस लाइफ टाइम में भी आप कंटिन्यूसली सिंसियरली अपने ऊपर काम कर रहे हैं. अगर नहीं तो आपको अपनी रियलिटी चेक करनी पड़ेगी. आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में जो बेसिक नीड्स हैं वहाँ पर किस चीज़ की कमी है, आपकी अबंडेंस कैसी है, राइट. एंड देयर इज अबंडेंस इज नॉट ओनली मनी. ओके, सो मनी जो है, व्हाट इज क्रिएटिंग इन योर लाइफ, व्हाट इज योर बिलीफ सिस्टम अबाउट मनी. पैसा पेड़ों पे नहीं लगता, हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, या जो रिलेशनशिप्स हैं जो भी है वहाँ पर अरे ऐसे ही होता है. जो मीन्स लाइक वी एक्सेप्ट वी आर सो इल्यूजन्ड कि जितने भी हमारे इल्यूजन्स हैं, जैसे एंगर इज ओके, इतना तो आता ही है, इतना तो होता ही है, दैट इज ओके थिंग फॉर अस. तो जितने भी हमारे इल्यूजन्स हैं, जो भी हमारी सेपरेट कॉन्शियसनेस है, जो भी हमारा सेपरेशन है, सेपरेशन किससे, हमारे डिवाइन से, राइट. जो जितना भी वो सेपरेशन है, वी एक्सेप्ट इट वेरी नाइसली एंड दैट बिकम द रियलिटी हमारी लाइफ का. हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा ही होता है, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, या विमेन ऐसी ही होती हैं, या जो भी इस तरह के रिजिड बिलीफ सिस्टम होते हैं, they do not come under spiritual law. Okay, so if you want to really heal your root chakra, you have to just see not only about yourself but your family history. Okay, sometimes if you go to doctor, how doctor sees your family history, if you are have diabetes or some kind of issues in you. So that is how, if you really want to heal yourself, it's not going to be like successful अगर आप इसको डीपली और कॉन्शियसली नहीं देखेंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं. और ये जो चक्रास हमारे होते हैं, they are not limited to our physical reality. Okay, they have connection with our astral dimension and with our causal dimension also, and the energy transit in between all the three dimension. अगर आपने कभी सुना होगा कि जो हमारे ऋषि और मुनि थे, वो बहुत घोर तपस्या करते थे, और कई बार they used to go into caves. वहाँ पर खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी, और वो एक बार अगर अपना थ्रोट चक्र जागृत कर लेते थे तो उनको खाने की ज़रूरत नहीं होती थी. कैसे? क्योंकि जो अपने कॉशल डायमेंशन से जो अपनी एनर्जी वो लेते थे अपने फिजिकल रियलिटी में, फिजिकल प्लेन में, सो दैट एनर्जी जो ट्रांजिट होती है, उस एनर्जी के ट्रांजिट होने से जो हमें जो
जो फिजिकल फूड है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह ये जो हमारे चक्रास हैं, दे आर कनेक्टेड टू आवर एस्ट्रल डायमेंशन एंड आवर कॉजल डायमेंशन ऑल्सो। जैसे जैसे अवेकनिंग होती है वैसे वैसे वी कनेक्ट। सेकेंडली व्हाट हैपन्स इज लाइक इट्स नॉट कि हम काम करना शुरू करेंगे और एकदम से अवेकन हो जाएगा कोई भी चक्रा। कई बार एक ही चक्रा में बहुत टाइम तक जो है वो अवेकनिंग चलती रहती है। यू फील लॉट्स ऑफ palpitation and it can happen, as I said, there is no time is only how much we have worked on ourselves, that only डिसाइड करता है कि कितना टाइम लगेगा। तो अब क्या होता है, अगर हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी है, जैसे सपोज हमने अपने मूलाधार चक्रा के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है हमारे वहाँ पर जो है अभी अवेकनिंग हमारी नहीं हुई कम्प्लीटली। तो जब हमारी कुंडलिनी एनर्जी हमारी मूलाधार चक्रा में अवेकन होना शुरू हो जाती है, many times it just keep moving out there also। और अगर ये एनर्जी किसी भी चक्रा में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है, और तब तक रहती है जब तक कि वहाँ पर पूरी क्लेंजिंग या हीलिंग नहीं हो जाती, राइट, जब तक वहाँ का पूरा कार्मिक बैगेज क्लियर नहीं हो जाता। तो जब तक वहाँ पर रहती है, कई बार इसलिए देखा गया है कि उस चक्रा की पर्टिकुलर जो भी सिद्धीज होती हैं, जैसे हर चक्रा की अलग अलग सिद्धीज होती हैं, तो उस चक्रा की जो पर्टिकुलर सिद्धि होती है वो ओपन होना शुरू हो जाती है। जैसे सपोज इट इज़ इन योर मूलाधार चक्रा, it's awakening, you become very abundant, there's lots of abundance. Now what is the concept of your abundance? Is it just the money? And why do you want that money? That is also very very important. Many people want money to have this power, ego power. They can become a terrorist, have lots of money. A killer can have lots of money. So what you do with that money is also the part of your journey. It's not that if you have worked on your any chakra and you got some siddhis, now what you do with that siddhi will decide your destiny ahead. और यही वजह होती है कि कई बार जब हम हर चीज़ पे गॉड को ब्लेम करने लगते हैं, ओ वी आर वर्किंग सो इतने दिन से हम काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर नहीं असर हो रहा, या हमारी डेस्टिनी में यही लिखा है, या जो भी वॉट एवर, डेस्टिनी इज़ व्हाट वी मेक। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो हमेशा बहुत लिमिटेड विजन में रहता है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि जो भी हमने किया है उसके पास जो है वो सॉलिड इंफॉर्मेशन हो, राइट। हम सिर्फ एक ही लाइफ टाइम का देखते हैं और हमें ऐसा लगता है, एंड स्पेशली एक चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ जो भी मेरे साथ जुड़ते हैं, कि प्लीज़ अपने आप को जो टाइम फ्रेम है इससे अपने आप को आज़ादी दे दो, कि हम 3 महीने हमें इनर वर्क करना है, 4 महीना इनर वर्क करना है, या सिर्फ यूनियन के लिए करना है, जो स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में है। हमें ऑलवेज काम करना है, देयर इज़ ऑलवेज एवोल्यूशन। जब तक हम 3D कॉन्शियसनेस में हैं, वी हैव टू वर्क ईच एंड एवरी डे ऑन आवरसेल्व्स। और जैसे जैसे हम अपने ऊपर काम करते जाएंगे, हमारी लाइफ जो है वैसे वैसे रिफाइंड होती जाएगी। ओके, सो कहाँ हैं हमारी ब्लॉकेजेस इन आवर रूट चक्रा? अगर हम इनसिक्योर फील करते हैं, अगर हमारे अंदर एंगर इश्यूज हैं, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमारा ये बिलीफ सिस्टम है कि हम जो है बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए या अबंडेंस के लिए, या हमें अबंडेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट। एक बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत पैसा होगा, बट दे कैन नॉट एंजॉय दैट because they are still in poverty consciousness, they are not in abundance consciousness. What you do with that? तो अगर आप इन इश्यूज के साथ, या जो भी आपकी फैमिलीज, जैसे मैंने बताया कि ये अनकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड है, एंड दैट्स हाउ वी हैव डिस्कस दैट बिफोर इन आवर 2-3 वीडियोज, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं
जिन्होंने अपने ऊपर कभी काम नहीं किया, जिनके पास स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं थी, और जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं और वो जो लोअर डायमेंशंस में जाते हैं ऑब्वियसली, तो किस तरह से वो अपनी लीनियज के ऊपर अटैक करते हैं। तो रूट चक्रा हीलिंग इज नॉट स्पेसिफिक टू ओनली योर पर्सनल हीलिंग. It all involves your ancestral healing, your family tree healing, your DNA healing, and each and every issue which I discussed before. And that's how we work on our root chakra. Any one of you wants to move ahead and learn, you can join me. You have my email address, you have my phone number. But if you are sincere to work on yourself, I cannot give you time, that how much time it will take. I just can share how you can heal. It all depends on your sincerity, on your dedication, और आप कितना हील होना चाहते हैं अपने एसेंशन के लिए फर्स्ट. सो दिस इज द फर्स्ट गेटवे, जब हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी है दैट स्टार्ट्स अवेकनिंग. एंड यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर व्हाई यू आर डूइंग योर इनर वर्क. जब तक मैं आप उन लोगों को जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जो अभी अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, या एनीबडी हु इज ऑन स्पिरिचुअल पाथ, अगर आपको सिर्फ यूनियन के लिए काम करना है, अगर आपको सिर्फ सिद्धि पाने के लिए काम करना है, तो माय डियर इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे एनीमोर. अगर आपको काम करना है अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करने के लिए, अपनी सोल को इस दर्द से, पेन से, हर्ट से, फियर से, जो इल्यूजन्स हमने अपने चारों तरफ क्रिएट किए हैं, उनसे निजात पाने के लिए, अगर आपको सिंसियरली अपनी लाइफ को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, अपने डिवाइन सेल्फ में आना है, यू आर मोर देन वेलकम टू कनेक्ट टू मी और any mentor wherever you like you feel connected with. But your sincerity and your dedication and your intention, that what intention you have. So yes, आप कर सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो फैमिलीज इश्यूज इतने नहीं हैं, आपकी फैमिलीज की जो हिस्ट्री है that's quite okay, like you don't have many issues regarding your abundance, you don't have insecurity issues, anger issues, या फैमिली में कोई भी इस तरह के रिलेशनशिप इश्यूज नहीं है, तो ऑफ कोर्स इफ यू जस्ट मेडिटेट ऑन योर रूट चक्रा एवरी डे, और you can chant the lam, it may heal you quickly. But if you have ancestral issues, if you have lots of security issues or the basic needs के जितने भी issues होते हैं, then you have to be aware that you have to learn how to do real inner work rather than wasting your time. That's all from me for Mooladhara Chakra. I'll try to put little quick meditation about this chakra on Instagram. I'm going to send the link. आप जो भी मेरा मेडिटेशन है रूट चक्रा के लिए, आप वहाँ पर कर सकते हैं. एन्जॉय योर जर्नी, इट्स ब्यूटिफुल. जब एवरी डे आप अपनी पावर में आना शुरू करते हैं, एवरी डे जो है आप अपनी साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं, यू स्टार्ट एन्जॉइंग, सो जस्ट एन्जॉय, डोंट मेक इट अ बर्डन ऑन योर सेल्फ. एंड हाउ यू कैन डू इट? लव योर सेल्फ, love to learn to heal, come back in your power, then your life will become beautiful. Thank you everyone जो भी मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं, और if I'm just trying my best whatever I know, और जैसे भी मैंने अपने आप को हील किया है, जो भी मुझे आता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना भी मुझे टाइम लगे, because I'm working also full time and I do my sadhana regardless, that is on priority every day. So उसके अलावा जितना भी मेरे पास टाइम मुझे मिलता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ और करती रहूँगी आप लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए. जो भी कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए like I don't have words to say thanks, it's not enough, and I'm very very grateful to my divine counterpart who put me on this. And today
even though I healed that separation, portion of my journey, but that really was the driving force for me to heal and to come in front of you and talk about all that. Thank you very much. And thanks to my divine.